Good morning, everyone. Today, we are here to discuss one of the most relevant and controversial topics in the field of education: online colleges versus offline college. Which is better mode of learning? This debate gained extraordinary importance after the COVID 19 pandemic. The sudden shift to online classes changed the way of education was delivered and received. Now, even after the pandemic is over, many institutions are trying to bring students back to the physical classrooms, while a larger number of students still prefer the comfort of online learning. So, the question is, what works best? Let's explore. The problem statement section 1 is that during the lockdown, online classes were not an option but a necessity. They kept the education system alive when colleges were closed. However, when once the situation normalized, the gap between student preferences and institution expectations became visible. Many managements are frustrated that students avoid physical classes. Students argue that online classes are fun, more practical, and time saving. Parents are divided. Some prefer the discipline of offline colleges, while others welcome the affordability of online education. This tug of war has made the issue of online versus offline education one of the biggest debates in academic today. So we are going to for online colleges. Online learning has transformed education into flexible and inclusive system. Let me highlight its advantages. First is accessibility. A student in a small town can attend lectures from a reputed college without shifting cities. This democratizes education. Cost saving: no hostel fees, no travel expenses, no additional living cost. Education becomes financially lighter. Flexibility: students can revisit recorded lectures, learn at their own pace, and balance studies with part-time jobs or internships. Fourth is technology driven skills. Online learning promote digital literacy, which is essential in today's workplace. Fifth, global exposure. Online platforms often allow students to take guest lectures from international experts, which is rare in offline colleges. तो हमें जैसे कि ऑनलाइन कॉलेजेस काफ़ी लोगों पर स्टूडेंट्स को काफ़ी पसंद है, बट इसके ड्रॉबैक्स भी काफ़ी सारे हैं. एंड कॉस्ट सेविंग में हम माना कि हम अपनी हॉस्टल फीस नहीं दे रहे, उनको ट्रैवल एक्सपेंस नहीं दे रहे, एडिशनल लिविंग कॉस्ट वो भी नहीं है. बट जो एजुकेशन की जो रेपुटेड कॉलेज में अगर हम एडमिशन लेते हैं, उन्हीं की जो पेपर फीस वगैरह वो तो सेम ही रहेगी. जब तक ऊपर से, क्योंकि इट्स नॉट, ये थोड़ा टाइम पीरियड के लिए था जब ऑनलाइन क्लासेस जब स्टार्ट हुई थी, और ये जल्दबाजी में स्टार्ट करी हुई चीज़ थी. कोई ऐसी प्लानिंग नहीं थी कोई चीज़ की, बस एक जूम मीटिंग, बस क्लासेस लगानी ज़रूरी थी कि बच्चों का साल ना ख़राब हो जाए, तो इसलिए नहीं. तो अगर प्रॉपर प्लानिंग से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की होती, तब कॉस्ट एफिशिएंसी ज़्यादा होती और रिलायबिलिटी इसकी ज़्यादा बनी रहती. बट आज के टाइम में ये एक डिबेटेबल टॉपिक बन चुका, इसी वजह से कि प्लानिंग से और प्रॉपर मैनेजमेंट से इसको ऑनलाइन क्लासेस नहीं मेंटेन है. दैट वाई आजकल स्टूडेंट एंड फैकल्टी एंड कॉलेजेस एंड पेरेंट्स सब जूझ रहे हैं दोनों के बीच में, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन. सो नेक्स्ट आता है हम ऑफलाइन कॉलेजेस पे. While online college is convenient, offline education builds something much deeper. Let me explain. Face-to-face interaction. Students learn not only from textbooks but also from discussions, debates, and real-time feedback from teachers. Campus life, friendships, networking, extracurricular activities, and cultural events shape personalities. These cannot be experienced virtually. True. Third, practical learning. Labs, workshops, and field visits provide hands-on training that no online class can replicate. Fourth, discipline and routine. Attending classes physically teaches punctuality, teamwork, and social behavior also. Fifth is reduced distractions. Unlike online classes where students must turn off cameras or multitask, offline classes demand focus. Offline education does not precede graduates, nurtures well-rounded individuals ready for real-world challenges. ये सब ठीक है चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताई, बट क्या कहते हैं ऑफलाइन में मेनली आपको पता ही है कितनी क्लासेस क्या कहते हैं कॉलेज में लगती है. पहले तुम जाओ कॉलेज में जाके, कॉलेज कभी टीचर नहीं आई, कभी स्टूडेंट्स कम आए, सबसे पहले ये. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बंक कर लेते हैं कॉलेजेस को. वही क्या कहते हैं जैसे कि हमारे मशहूर है गेड़ियाँ मारनी, फ्री में क्या कहते हैं कैंटीन बैठ जाना, काफ़ी ज़्यादा ये इसका ड्रॉबैक है क्या कहते हैं कॉलेज के अंदर. और ऊपर से वही ओल्ड फैशन हमारी अटेंडेंस इशू, 75% आपकी अटेंडेंस नहीं होगी तो आपको पेपर में नहीं बैठने देंगे. तो ये चीज़ें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी लाइक क्या कहते हैं ऑफलाइन कॉलेजेस में, क्योंकि जब एक काफ़ी लंबे टाइम के बाद एक गैप आया था जब क्या कहते हैं
सब ऑफलाइन कॉलेजेस से ऑनलाइन सारे चले गए। सो मैनी ऑफ द कॉलेज क्या कहते हैं, बच्चों को एडवांटेजेस दिखी इसके अंदर कि हमारा टाइम कितना सेव हो रहा है। और जब सब बैठ गए थे घर पे, तो एक दिमाग में ये है कि हम लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम ठीक भी कर रहे हैं, क्योंकि एक भेड़ चाल चली जा रही थी इतने 70 सालों से, जब से हम आज़ाद हुए हैं हमारा देश, तब से कॉलेजेस हम चली जा रहे हैं, वही हमारा पुराना कॉन्सेप्ट चली जा रहा है। तो एक 2020 में 2021 में एक ब्रेक आई कि हम इसके ऊपर कुछ सोच पाएँ। तभी अभी तक 5 साल हो गए इसको क्या कहते हैं, कोविड को ख़त्म हुए, तब तक अभी भी डिबेटेबल टॉपिक है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। अभी भी फैकल्टी वही प्रॉब्लम है फेस कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स कॉलेज में आना ही नहीं चाहते। रेशो पहले 100 से 35% पे गिर चुकी है। बेशक दे आर टेकिंग एडमिशन्स ओनली फॉर द डिग्रीज, बट क्या कहते हैं, कॉलेजेस के अंदर अब इतना बड़ा इंफ्रा कॉलेज ने बनाया हुआ है, उनके लिए लैब्स बनाई हुई हैं, चीज़ें क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाने के लिए तैयार हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चे इंजॉय भी करें कॉलेज में आके, बट वेरी लेस रिस्पॉन्स इज़ कमिंग। तो इस चीज़ को हमको दूर करना है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे। तो काउंटर पॉइंट्स हमारे आते हैं, ऑफलाइन में ऑफर्स सोशल एक्सपीरियंस, it is always productive. Many students waste hours in travel, face unnecessary restrictions, and deal with outdated teaching methods in digital age. Isn't it better to embrace technology? तो इस चीज़ में हमको फ़ायदा है, जो बच्चे जैसे कि काफ़ी गर्ल्स और क्या कहते हैं टायर 3 सिटीज़ के अंदर उनके पेरेंट्स को जाने नहीं देते थे, काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी मोस्टली गर्ल्स को, क्या कहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद है ऑनलाइन क्लासेस। बट क्या कहते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। ट्रू ऑनलाइन इज फ्लेक्सिबल, बट what about mental health? Prolonged isolation, lack of peer interaction, and screen faith को entry problems. Education is not only about content, it's about community. तो ऑनलाइन में काफ़ी कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें भी हैं, वही मैंने आपको डिस्कस बताया कि काफ़ी हेल्प हो जाती है। जो स्टूडेंट्स नहीं पढ़ पा रहे थे टायर 3 के अंदर, वो पढ़ पा रहे हैं। टायर 1 का हम अभी बात नहीं करते, टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की बात करते हैं, जो जैसे कि स्टूडेंट्स क्या कहते हैं काफ़ी बिजी रहते हैं, मतलब उनके काफ़ी पुअर फैमिली से हैं, तो ऑनलाइन उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ कि जो पढ़ना चाहते हैं, एक अपना इंटरनेट पैक 200-300 रुपये का डलवा के अगर पर मंथ में क्लासेस लगती है उनकी अच्छी क्लासेस, तो पढ़ पा रहे हो ईजीली, बाय कहीं पे जाना नहीं, घर पे बैठ के पढ़ना और जब मर्जी पढ़ लेना। बाकी हम इस पर एक पूरा बैलेंस्ड व्यू पे हम इसके ऊपर आते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। बोथ आर्ग्यूमेंट एंड स्ट्रगल आर वैलिड. Online education offers flexibility and inclusivity, while offline education provides real-world exposure and holistic growth. The real solution may not be in choosing one over the other, but in creating hybrid or blended model of education. Online for theory, lectures, tutorials, and self-paced learning can be online. Offline for practice, labs, discussion, seminars, and cultural experience can remain offline. So ये बहुत अच्छा मेथड है कि ऑनलाइन हम क्या करते हैं, सिर्फ जो हमारे लेक्चर्स हैं हम ऑनलाइन लगा लें, ट्यूटोरियल्स लगाने, जो भी हमारे पॉइंट्स हैं वो हम लगा लें ऑनलाइन। और जो ऑफलाइन जैसे कि कोई भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, और लैब्स में जाना और सेमिनार्स अटेंड करना, कल्चर एक्सपीरियंस होना, वो हम ऑफलाइन जाके कर ले। तो बहुत मिक्स एंड मैच में इसको एक बना के रखना है कि अब हम ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ ऑफलाइन ही जाएंगे, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हो चुका काफ़ी और स्टूडेंट्स नहीं अडॉप्ट करेंगे। वेरी डिफ़िकल्ट ना हो क्या कहता है अडॉप्ट करना। तो हमें सबसे बेस्ट है दोनों को लेके एक बैलेंस्ड हमको फॉर्म बनानी पड़ेगी कि जिसमें दोनों चीज़ों में स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो जाए, कॉलेजेस का भी फ़ायदा हो जाए। तो लास्ट में हम कंक्लूजन पे आते हैं। द डिबेट ऑफ ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कॉलेज इज नॉट अबाउट विच वन शुड सर्वाइव, इट्स अबाउट हाउ बोथ कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर. Online learning ensures accessibility and convenience, while offline education ensures holistic development. The future of education lies in balance, innovation, and adaptability. So instead of asking which is better, perhaps the right question is how we can combine both to create the best learning experiences for students. तो लास्ट में हमको ये पता चला कि इसमें से कोई बेटर कुछ नहीं है, दोनों को ही आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो दोनों ही क्या कहते हैं चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो अडॉप्ट करो, बैलेंस करो उसको, और इनोवेशन की तरफ अडेप्ट करना ज़रूरी है इस टाइम। तभी कॉलेजेस और स्टूडेंट्स का अच्छी तरह रिलेशन और स्ट्रॉन्ग होगा फ्यूचर के लिए। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय.